We'll start. 1 second, ma'am. Yes. Yes, ma'am, we are live. You can start now. Thank you, Dr. Akshay. A very warm good afternoon to one and all. Myself, Dr. Manjula Karlawad, Associate Professor from the Department of Kaya Chikitsa Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. Welcome you all for the 16th day of Navadasha Samvada. Today we have with us Dr. Sachin Rohani. Sir is going to talk on the topic Chikitsa Sutra and management of Sthanantara doshas. That is Ashapakarsa, Anulomana, Pratilomana, and Vimarga Gamana of the doshas. Okay, sir has already joined the meeting. Heartily welcome you, sir, for today's session. Thank you for sparing your valuable time. Now, as a part of the rituals, I call upon Mr. Sanjay, uh, class representative of final year BMS student, uh, Ayurveda Mahavidyalaya Hubli, to introduce our today's guest speaker, Dr. Sachin Rohani, and also welcome sir for today's session. Dr. Sanjay, is over to you. Sarvesham Namaskara. It is indeed my privilege to introduce Dr. Sachin Rohani, sir. Dr. Rohani has completed BMS from BVVS Sanghas, Ayurvedic College, Bagalkot, Karnataka, and post-graduation from R.A. Poddar Government Ayurvedic College, Worli, Mumbai. Sir is a specialist in bone, joint, and spine disorders. Sir has presented more than 30 national and international papers. Sir has conducted and participated in different workshops on bone, joint, spine. Currently, Sir is practicing specialty practice in Pimpri, Pune, and are working as an associate professor at Dr. D.Y. Patil College of Ayurveda and Research Center, Pimpri, Pune. I wholeheartedly welcome Sir to the session. We are glad to have you, sir. The session is all yours now. Dhanyavad. Thank you, Dr. Sanjay. Uh, Dr. Sachin, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, you can start, Dr. Sachin. Okay, ma'am. Start. Yeah, right. Thank you. मंजुला मैम, सबको दिख रहा हूँ ना मैं? होप सो. यस यस यस. थोड़ा स्लाइड शो पे रख देंगे तो अच्छा होगा. हाँ, वो फुल yes, स्क्रीन yes. दिखाई देगा. Yes. Yeah. नमस्कार. Yeah. Okay. Yes. So thank you, Hubli College, Principal Sir, HOD of Kaya Chikitsa, and all students, all Department of Kaya Chikitsa, and mainly Dr. Manjula Madam. तो थोड़ा मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा. So चिकित्सा सूत्र एंड मैनेजमेंट ऑफ स्थानांतर दोष, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे नाम में इतना बड़ा सब्जेक्ट है और दोपहर को 2:30 बजे ये लेक्चर लेने के लिए बोला गया है, तो थोड़ा ना बोरिंग होगा. इसके वजह से ना हम आज केसेस और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि गति जो है, गति के ऊपर ना बहुत सारा एक श्लोक्स हैं. जब हम सेकंड ईयर निदान में जाते हैं या काय चिकित्सा फर्स्ट में पढ़ते हैं तो गति के बारे में पढ़ते हैं कि गति क्या है. एक छोटा सा श्लोक दिया गया है, वो श्लोक ये है, शौर्य स्थान वृद्धि रोषाणाम त्रिविधा गति. ये बस हम बाइट करते हैं और एग्जाम में लिखते हैं. RGHS में मैंने भी पेपर दिए हैं, इसलिए मुझे पक्का पता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है. मैं ना एकदम अच्छी तरह से आपको समझाना चाहूंगा. अच्छा, कोई भी क्वेश्चन होंगे ना तो चैट बॉक्स में पूछो या आखिर में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सो ये गति है. लेकिन सच बताऊं दोस्तों, जब मैं प्रैक्टिस किया 7-8 साल के बाद, उसके बाद ना इस गति का इंपॉर्टेंस मुझे पता चला. तो आज वो हम देखने वाले कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. अगर आपको ये गति अच्छी तरह से पता नहीं रहेगा तो आपको यश छोड़ो, ओके, यश ट्रीटमेंट में रिजल्ट छोड़ो, लेकिन साइड इफेक्ट्स होते हैं.
वो मैं पक्का बताऊंगा। तो ये श्लोक ना हमेशा हम एक बाइट कर लेते हैं, कोई टीचर रहेगा अच्छा वाला तो हमें हमें बाइट करने के लिए बोलता है, पेपर में हम लिखते हैं ये 3 गति, और हमें पता है वो हाफ पेज, 1 पेज, 1.5 पेज, डिपेंड अपॉन मार्क्स हम भरते जाते हैं। तो ये बेसिक है। जैसे गति है क्षय स्थान वृद्धि, ऊर्ध्व अध तिर्यक और कोष्ठ शाखा मर्मा। अभी मंजुला मैडम ने मेरा सब्जेक्ट एक लिमिटेड ऊर्ध्व अध और तिर्यक के ऊपर डाला है, तो हम वो ज्यादा देखेंगे, नहीं तो सभी के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन ये ऊर्ध्व अध तिर्यक ही है ना, वो सभी इस गतियों में समाई हुई है, उसमें सभी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। दोस्तों याद रखना, आप काय चिकित्सा के स्टूडेंट्स हो, हम कोई भी डिसीज ठीक नहीं करते, हम डिसीज की अवस्था ठीक करते हैं। ये एक बहुत अच्छे से श्लोक से मैंने डाले हैं रेफरेंस के लिए। ओके, बिकॉज अवस्था हमें पता रहना चाहिए। मैं ना आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ओके, आप हुबली से निकले और बागलकोट के लिए चले रहे और ट्रैफिक जैम हो गया बीच में, कहीं गोकाक की तरफ अगर कहीं ट्रैफिक जैम हो गया वहां पे हाईवे पे, ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ट्रैफिक जैम कहाँ पे है, रोड क्यों ब्लॉक हुआ है, रोड का प्रॉब्लम क्या है, ओके, कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो वैसा ही अवस्था है, दोष कहाँ पे है, किस हाल में है, कौन सी जगह पे है, ये बहुत अच्छी तरह से वहां पे आपको पता रहना चाहिए। इसको ही बोलते हैं अवस्था। ओके, हमें ना अवस्था के बारे में बहुत सारे हम सोचते नहीं है ट्रीटमेंट करते वक्त। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको पेशेंट आया आपके पास, अगर आमवात का पेशेंट है, तो पहले दिमाग में आपके आता है सिंहानाथ गुगुल यूज करना है, सिंहानाथ। लेकिन सिंहानाथ गुगुल कौन से अवस्था में यूज करना है, आमवात के पेशेंट को, या अम्ल पित्त का पेशेंट आया जिसको वोमिटिंग हो रहा है और बर्निंग में, सभी को होता है। अब या अगर आप हुबली में कहीं रात को किसी की पार्टी में खाना खाने गए तो आपको एसिडिटी बढ़ जाएगा। रात को ऐसे फ्रेंड्स लोगों के साथ जाते हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्यादा खा लिया तो वोमिटिंग सेंसेशन और उल्टी जैसा होगा, तो पहले दिमाग में आपको आएगा शुद्ध शिखर। ठीक है, बट वहां पे साम पित्त है कि निराम पित्त है ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं अवस्था। मैं आपको उसके बारे में ना बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर ये एसिड है, ओके, अगर वो एसिडिटी बढ़ा पेशेंट्स का खाने पीने की वजह से, अगर वो बाहर आ रहा है तो आप वहां पे शुद्ध शिखर यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे उतना ही है जिस क्वालिटी ऑफ इसका ये बढ़ा, ओके मैडम साखर डालूंगा, क्वालिटी ऑफ पित्त बढ़ा, क्वांटिटी नहीं बढ़ा, तो आप वहां पे काम यूज कर सकते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ अवस्था है, हम आगे जाने के पहले वो देखना चाहिए। हमें पता है कि अवस्था ट्रीट करते वक्त दोष कहाँ पे है, क्योंकि गति का इंपॉर्टेंट, गति मीन्स क्या, घूमना, इधर जाना उधर जाना, तो दोष का स्थान कहाँ पे वो हमें पता रहना चाहिए। और अलग अलग चिकित्सा सूत्र है दोष जहां पे जाता है उसके हिसाब से। पहला एग्जांपल, दोष अगर स्वस्थान है तो स्वस्थानस्थो बलि दोषाः स्वैर औषध जयेत, वहां पे दोष है उसके हिसाब से आप चिकित्सा करो, बात खत्म। ओके, जैसे वमने विरिक बस्ती, मीन्स अगर कफज रहेगा, पित्तज रहेगा या वातज रहेगा, दोष उसी जगह पे है। लेकिन दोष अगर दूसरे घर पे, जैसे अभी वो अच्छा कोई चोर है, वो आपको पता है अगर उसके घर पे छुपा हुआ है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो चोर किसी और जगह पे, जिसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड हो गया, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एंड सर्च आउट एंड रिमूव इट। ठीक है, तो याद रखना, दोष चोर अपने घर पे कि दूसरे घर पे, और यू आर द पुलिस। ओके, इतना याद रखना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्थान इन चिकित्सा। ये जो वर्ड है ना, स्थानांतर्गतश्चैव। ओके, हम ना बहुत सारा एलोपैथी पढ़ते हैं जब भी रेफरेंस ढूंढते हैं, तो आयुर्वेदिक का ना स्थान और उनके अंदर घूमने वाले दोषों का ना पता नहीं रहता। ओके, तो समुत्थान जैसे कफ, पित्त और वात, ये अपने स्थान है उनके। इसके बारे में मैं आगे एक स्लाइड है, इसके बारे में आप षटक्रिया काल के ऊपर देख सकते हो, चय एव प्रकोप और प्रसर। प्रसर मीन्स वो जाना। आपको और एक एग्जांपल देता हूं, कुपितानाम ही दोषानाम। हमें पता है दोष कुपित हो रहे हैं और वो शरीर में घूम रहे हैं, जहां पे उसको ख वैगुण्य दिखा वहां पे वो संग हो जाएंगे। तो डिपेंड अपॉन कहीं भी ख वैगुण्य दिख सकता है, तो वो स्थान का आपको महत्व है। ठीक है, ओके, ये हो गया बेसिक्स। अभी हम गति पे आएंगे। दोस्तों हमेशा ना हम गति के बारे में ना एक चीज हमें बोला जाता है कि गति को अनुलोमन करो, या गति मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं है। ओके, दोष गति है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस है। मैडम ने मुझे जब ये टॉपिक के बारे में बताया तो ऐसा कहीं भी एक रेफरेंस नहीं है कि इस गति को ऐसे ही ठीक करो, उस गति को ऐसे ही ठीक करो।
तो इस गतियों की जो रेफरेंसेस मुझे मिले हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन ओके, डिफरेंट गतिज और डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। अति प्रवृत्ति, अभी अतिसार और अम्ल पित्त का एग्जांपल लो। पेशेंट का अपान वायु है, अपान वायु का गति कैसा है आप देखना, याद रखना, गति ये वायु के हिसाब से बहुत सारा निगड़ित है, माना पित्त और कफ के साथ भी है, लेकिन वायु के हिसाब से बहुत सारा निगेटिव है। वायु में भी अगर 5 वायु हम पकड़ेंगे तो अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, ये सभी जो वायु है ना, उसमें उदान वायु छोड़ा तो सभी अनुलोमक तरह के जाते हैं। मींस वो प्राण होगा, प्राण वो अपान रहेगा, ओके, उसके साथ आप अगर व्यान देखोगे तो गत्य अपक्षेपण अपक्षेपण भी है, लेकिन उसका अनुलोम गति भी है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक ही जो वायु है, जो उदान वायु है, वो ऊर्ध्व गति है। तो अगर यहाँ पे अपान का, अतिसार का पेशेंट आपके पास पेशेंट आया लूज मोशंस का, तो वो अति प्रवृत्ति है, गति का अति प्रवृत्ति, ठीक है। तो आपने जब स्तोत्रस पढ़ते हैं तो आपको ये 3 चीजें पता है, संग, अति प्रवृत्ति, शिरा ग्रंथि और विमार्ग, ठीक है। तो शिरा ग्रंथि को हम थोड़ा साइड में रखेंगे, हम अभी 3 देखेंगे, अति प्रवृत्ति, संग और विमार्ग। संग मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ मैं सांस ले रहा हूं, मेरा प्राण अंदर जा रहा है, लंग्स में कहीं मुझे अवरोध निर्माण हुआ, अभी कोविड के पेशेंट्स में बहुत सारे देख रहा हूं, तो कोविड के पेशेंट्स में जो अवरोध निर्माण होता है कफ का, ओके, या कभी कभी वायु का भी होता है, तो उसके वजह से विमार्ग कम हो जाता है। तो संग लीड्स टू, वहां पे संग है, उसके वजह से विमार्ग कम हो गया। गति कैसा है प्राण का, अनुलोमक है, नीचे जाने वाला है, लेकिन उसको अवरोध किसका बैठा, किसी का भी बैठा होगा, वो हम देखेंगे, लेकिन वो विमार्ग गमन। तो गति क्यों बिगड़ी, बिकॉज ऑफ विमार्ग गमन एंड बिकॉज ऑफ संग। बाद में अति प्रवृत्ति लीड्स टू विमार्ग गमन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने दूध का पतीला देखा है ना, दूध का पतीला, ओके, आपने गैस फास्ट किया, ऊपर आया और नीचे गिर गया, वहां पे कहीं संग था नीचे, कहीं नहीं था, सिर्फ आपने गैस। वैसे ही पेशेंट का केस रहता है आम्ल पित्त का, आम्ल पित्त हुआ 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 अति प्रवृत्ति, पेशेंट को वोमिटिंग हुआ, लेकिन वोमिटिंग होने के बाद वो तिर्यक भी गया, विमार्ग गमन हो गया, और उसके बाद पेशेंट को शीत पित्त कामला स्टार्ट हो गया या तिर्यक रक्त पित्त स्टार्ट हो गया। तो आप ये सोचो, गति का ट्रीटमेंट करते वक्त ये बिगड़ा क्यों है, अति प्रवृत्ति की वजह से विमार्ग गमन हुआ है, तो संग की वजह से हुआ है कि अति प्रवृत्ति की वजह से। अब ट्रीटमेंट इसका सभी का चेंज होता है। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। गति के टाइप्स ये कहीं भी लिखे हुए नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिस में, मेरे अनुभव में आपको ये टाइप्स करके बताया। ये एक्चुअली अप्लाई आपको करना है जो भी संहिता में दिया गया है, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, वाक्पंची हो गए, ठीक है। अभी ना हम केस देखें। केस नंबर 1, एक 25 ईयर का पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है, यहाँ पे मेरे पास आते रहते हैं कि डॉक्टर मुझे कफ है, ड्राई कफ, ठीक है। तो ड्राई कफ है, पेशेंट आता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। पल्स देखा, बीपी देखा, प्रकृति देखा, सब किया, आपने वातजकास डायग्नोस किया, ठीक है। तो वातजकास डायग्नोस किया तो आप पहला सोचेंगे क्या, ओके वातजकास, सो मैंने कहीं पढ़ा था कि कंटकारी आहुलेह देना चाहिए, ओके, या यष्टि मधु देना चाहिए, या आप सोचोगे कि चलो मैं और क्या दूं, लवंगादि गुटिका दूंगा, या ऐसे आप मेडिसिन सोचोगे, या कोई बहुत ही डीप सोच के पंचतिक्त घृतगुग्गुल देगा, ठीक है। ये केस पेशेंट आया, आपने डायग्नोस किया वातजकास। अभी आप देखना पेशेंट को कास है, तो इसका संप्राप्ति हमें कहीं ना कहीं इसमें मिलता है। तो हम अच्छी तरह से, मंजुला मैडम ने हमें संप्राप्ति पढ़ाया है, तो हम ये संप्राप्ति अच्छी तरह देखेंगे। वायु ऊर्ध्व समासिता, कास के पेशेंट का संप्राप्ति क्या है कि वात प्रकोप होता है तो वायु का प्रतिलोम होता है, जो फिर वायु का ऊर्ध्व गति, अपन वायु ऊर्ध्व गति जाता है, फिर उदान वायु भी ऊपर चला जाता है, फिर प्राण वायु प्रतिलोम होकर कास फॉर्म हो जाता है। ये कास का संप्राप्ति है जो हमें रेफरेंस में चरक संहिता में मिलता है, ठीक है। तो ये जो कास संप्राप्ति हम देखते हैं, तो लेकिन इसके आगे आपको देना है, सिर्फ आप व्याधि प्रत्यनिक दवाई जैसे कंटकारी रहेगा, यष्टि रहेगा, या ये आप यूज करने से अच्छा आप आगे सोचो। जैसे अभी प्राण का तो प्रतिलोम हो गया, तो कभी कभी ना कास के पेशेंट को ना अग्नि का दृष्टि रहता है। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ऐसे पेशेंट ना आपको बोलते हैं डॉक्टर मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कास है लेकिन मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो सिर्फ आप कंटकारी या सिर्फ आप यष्टि दोगे तो वो स्थानिक चिकित्सा होगा। मूल ये आमाशय में है या पक्वाशय में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वहां पे आप अग्नि रक्षण करते हो,
जैसे शंखवटी देते हो, त्रिकटु देते हो, यत्किंचितम कफवातगणम उष्णम वातानुलोमनम, कफवातगण द्रव्य देते हो, ठीक है, समान। तो आप देखना कास का रिलेटेड अग्नि से हुआ। दूसरा, बहुत सारे पेशेंट को ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मलावष्टम। मैंने ऊपर आपको ये केस बताया कि मलावष्टम है, तो वहां का जो अपान वायु ऊपर आया तो आपको बस्ती रेचन देना चाहिए, ठीक है। तो नीचे का जब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, ऊपर का ठीक नहीं होगा। आप ठीक है, आप यष्टि दो, कंटकारी दो, वो स्थानिक चिकित्सा हो गया, स्थानिक दोषों का चिकित्सा हो गया, लेकिन आपको बस्ती होगा, रेचन होगा। सिंपल सी चीज दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है। गंधर्व हरित की भी दिया ना पेशेंट को, बहुत फायदा होता ना दिखता है। प्लेतक कफ का दृष्टि, कफ वहां पे निकला, फिर वो शुष्क कास नहीं करेगा, वो कफच कास करता है। पाचक पित्त, आप विश्वास नहीं करोगे, सूचशेखर आप पढ़ो, सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र में या इंडिया में भी मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा साउथ इंडिया में कम, अगर यूज होने वाला मेडिसिन सूचशेखर है, सुवर्ण सूचशेखर, ठीक है। तो दोस्तों सूचशेखर जो मेडिसिन है, ओके, चाबी ठेवून जा। सूचशेखर मेडिसिन में अगर आप देखोगे तो पंचकासान और पंचश्वासान दिया है। मैं हमेशा सोचता था कि कास के पेशेंट को सूचशेखर देके क्या फायदा। फिर मैंने कुछ मॉडर्न पढ़ा, मॉडर्न में बताया गया यार ये तो हाइपर एसिडिटी, जो गर्ड के वजह से भी खांसी आता है, उसके वजह से तो हो सकता है क्या। तो मैं इतना दिन में 2-3 साल वही सोच रहा था कि गर्ड में जो कास कफ निर्माण होगा उसको आप सूचशेखर दो। पर दोस्तों मैं बाद में मुझे गृहिणी का रेफरेंस मिला, ओके, वातज गृहिणी में कास का लक्षण आया है। मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं सभी आज पेशेंट्स के बारे में बताऊंगा प्रैक्टिकली। एक पेशेंट आया जिसको गृहिणी था। गृहिणी मींस क्या, उसको आईबीएस, स्ट्रेस रिलेटेड था, ओके, कभी लूज मोशन होता था, कभी कॉन्स्टिपेशन होता था, और उसको ना उसका कास ही कम नहीं हो रहा था। तब मैंने, वो बोल रहा डॉक्टर मुझे कास है। मैं बोला देख यार, कास का बाद में देखते हैं, मैं अभी तेरा गृहिणी ठीक करता हूँ पेट का। मैंने फिर बिल्व पाक आता है वो दिया, उसके साथ सूचशेखर दिया जिसको थोड़ा ग्राही भी काम करेगा। यू कैन इमेजिन, एक्सीडेंटली देखो पेशेंट का कास कम हो गया। मैं बोला यार कास कैसे कम हो गया डॉक्टर, मुझे पता नहीं, लेकिन इतने दिन कास था, सिर्फ मैंने आपका दवाई दिया, कम हो गया। मैं बोला पेशेंट थोड़ा साइको रहेगा, ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन बाद में मुझे ये रेफरेंस मिला और पेशेंट ने मुझे सिखाया कि वातज गृहिणी में जो कास आया है और गृहिणी का चिकित्सा जो सूचशेखर आया है, वो सूचशेखर मैंने देने के बाद पेशेंट का कास ठीक हो गया। जस्ट यू इमेजिन, ये बहुत डिफिकल्ट अगर नहीं हो रहा है ना, मैं आसानी से बताता हूँ। गृहिणी से जो दोष उत्पन्न होते हैं, वहां पे वायु का दुष्ट होता है, वो कास फॉर्म करता है। मैंने जो मूल स्थान है ना, मूल, वो एक अच्छा स्टोरी हमें बताया जाता है कि नाव में पानी भर जाता है, तो एक बंदा आता है, वो बोलता है सब जन ट्राई करते हैं। एक अच्छा खासा इंजीनियर आता है, वो नीचे से होल को सिर्फ एक कीला ठोकता है, एंड ही चार्जेस 10,000 रुपीज। देन ही विल आस्क कि 10,000 क्यों, बोलता है 1 रुपीज फॉर स्क्रू, 9,999 रुपीज फॉर कहाँ उसको ठीक करना है उसके हिसाब से। तो इसका जो वायु का प्रॉब्लम था वो गृहिणी में था, तो गृहिणी ठीक हो गया, बात खत्म। नाउ गति अगर आपके बारे में सोचोगे तो पेशेंट का, सो वहां पे चिकित्सा करना और गति ठीक करना, जो गति ऊर्ध्व हो गया था, जो पेशेंट का अनुलोमन गति होना चाहिए जो ऊर्ध्व हो गया था, तो वो शमन मेडिसिन से ठीक हो गया विद द हेल्प ऑफ सूचशेखर। तो पक्का आप ये याद रखना, होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, मुश्किल नहीं हो रहा है। सो थिंक वेयर अवरोध ऑफ दोष है, कहां पे अवरोध है, समान में है, अपान में है, क्लेदक में है, पाचक में है। क्या होता है पता है दोस्तों, जब भी आप सिर्फ कंटकारी अवलेह या यष्टि देते हो ना, तो पेशेंट को ना टेम्पररी ठीक लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ठीक नहीं लगता पेशेंट। वो बोलता है डॉक्टर मुझे ठीक लगा, बट थिंक अबाउट कि उसको अपुनर्भव होना चाहिए, उसको चिकित्सा करते वक्त वापस तकलीफ नहीं होना चाहिए। थिंक संप्राप्ति, थिंक प्रॉब्लम, थिंक पानी कहाँ से आ रहा है नदिया में, वो बोट में, थिंक अवरोध कहाँ पे है, या अवरोध नहीं है तो दोष कौन सा है और दुष्य कौन सा है। ठीक है, होप सो फर्स्ट केस आपको समझ में आया। ओके, अभी आप देख रहे हैं धूमा बताया गया है। ओके, अभी आप कास चैप्टर निकालो, उसमें निकालोगे तो वातज कास में बस्ती भी बताया गया, सर्पी भी बताया गया। अभी सर्पी कहां पे बताया गया होगा, कहां पे प्रॉब्लम होगा, जैसे सिर्फ वायु का प्लेन प्रॉब्लम होगा, कहीं अवरोध नहीं रहेगा, तो सर्पी। बस्ती अपान वायु का प्रॉब्लम रहेगा, वातग्न सिद्धस नहीं। फिर धूम, धूम में स्थानिक प्रॉब्लम रहेगा, स्थानिक कफ का अवरोध दूर करना रहेगा। तो आप ये सोचो कि अवरोध कहां पे, उसके हिसाब से आप पेशेंट को ट्रीट करो। फॉर्मूला प्रैक्टिस जो लोग करते हैं या किसी बुक में पढ़ के करते हैं,
पेशेंट ठीक नहीं होता। ठीक है, जिसे चित्र का ये है, अभी कफज पेशेंट है, जैसे पित्तज पेशेंट आ गया और उसको कास है। ओके, तो आप बोलोगे डॉक्टर, मेरे को डॉक्टर सचिन रोहानी ने पढ़ाया था कि जो पेट का तकलीफ के बाद होने वाला कास को सूक्ष्म यूज करना है, लेकिन वो पित्तज था। किसी किसी को कफज ग्रहणी भी रहता है, कैसे पहचानना है? डिपेंड अपॉन लक्षण। चित्रकाटी लेह दिया फिर मैंने, ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए पित्तज। और चित्रकाटी लेह का भी सुंदर एक्सपीरियंस मुझे मिला है, वो भी कास इसमें ही है। तो कास कहां से उत्पन्न है वो आप होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। नाउ आप सोचो कि उसको ये प्रॉब्लम था। नाउ सेकंड एग्जांपल हम लेंगे। अभी तो श्वास के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, बारिश का सीजन है, और हुबली बेलगाम वहां पे मैं रहा हूं, देखा है ठंडी अच्छा खासा रहता है, जैसे पूना में रहता है वैसे। ओके, गर्मियों में गर्मी और ठंडी में, तो वहां पे अवरोध जो कफ का फॉर्म हो जाता है, उसके बाद ऊर्ध्वगति फॉर्म हो जाता है। तो पहले पेशेंट्स में आपको पेशेंट का जो पहला हमने केस लिया, जो गति पेशेंट का ठीक करना था, वो स्थानिक चिकित्सा देते या मेडिसिन देते वक्त शमन औषधि से ठीक करने के लिए बोला। कास में भी पंचकर्म बोला, बस्ती जैसा, लेकिन शमन औषधि के ऊपर ज्यादा मात्रा में। और ये पेशेंट का, श्वास पेशेंट का अगर आप देखोगे, पेशेंट का प्राण जो है वो अवरोध निर्माण होता है बिकॉज ऑफ कफ। वहां पे अवरोध किसका है? कफ का है। जो गति अनुलोमन होनी चाहिए वो प्रतिलोम हो जाती है। ओके, तो अनुलोम गति के लिए उन्होंने तमकेतु विरेचनम बताया, अनुलोमन करने के लिए। गति को आप अनुलोमन करो, ठीक है, तो विरोध करो। ये तमकेतु विरेचनम, दिस वातश्लेष्म विरेचन के बारे में हमें मैडम पढ़ाती है कि तमक श्वास में विरेचन ही क्यों? बिकॉज वो वात, कफ, गति को अनुलोमन करना, इस चीज की वजह से वो काम करते हैं। तो आप एक ही रेफरेंस अगर आप देखोगे, कास में, वृक्ष कास में बस्ती बोला, श्वास में पहले विरेचन बोला, बाद में बस्ती बोला, बिकॉज पहले कफ भी निकलना चाहिए। ओके, बाद में आप स्थानिक और सार्वदेहिक चिकित्सा, ये दो वर्ड हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, स्थानिक और सार्वदेहिक। स्थानिक जो हम तेल लगा के मालिश करते हैं यहाँ पे, और उसके वजह से कफ निकलता है, और बाद में और सार्वदेहिक में सारे शरीर का। ठीक है, सो मार्गावरोध जो हमें कम करना है इस पेशेंट का, वो कफ का करना है। पहले वहां पे कास में, वातज कास में बस्ती देके हमने वात को ठीक किया, यहाँ पे कफ का अवरोध दूर करके हमने वायु को अनुलोम किया। सो स्थानिक अवरोधात्मक चिकित्सा। हम अभी ऊर्ध्वगति पढ़ रहे हैं, कास, श्वास। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, केस नंबर 3। ये ना पेशेंट को अभी अवरोध नहीं, जैसे उस वहां पे कफ का अवरोध था, वहां पे आ गया। नाउ यहाँ पे छर्दी का पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर मुझे वोमिटिंग हो रहा है। तो वोमिटिंग के भी बहुत सारे कॉजेस है, छर्दी के, वातज, पित्तज, कफज, बट एक नॉर्मल हम पेशेंट देखेंगे। पेशेंट आया आपके पास, डॉक्टर मुझे वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या बोला? ये आप रेफरेंस आपको पता है, दोषानि ऊर्ध्वं वृद्धानु उदान व्यान संगता, उदान व्यान संगता, ऊर्ध्वं गच्छति, ऊर्ध्वं गच्छति। तो व्यान वायु उस आम वहां पे फॉर्म होता है, और जो प्राण अंदर जाता है, और उदान और व्यान और समान, ये 3 प्रॉब्लम होती है वहां पे, व्यान, समान और उदान। ठीक है, समान वायु अग्नि का दुष्ट करता है, और व्यान और उदान की वजह से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवरोध है क्या किसी का? नहीं। अभी आप अगर वो सोचोगे कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो वोमिटिंग, वो बात अलग है, लेकिन हम जनरल सर्दी के बारे में बात करें, वहां पे आम फॉर्म हुआ, बाद में वोमिटिंग हो गया। तो गति जो वायु का नीचे जाना चाहिए, वो गति नीचे न जाके पेशेंट का व्यान का गति उसके साथ मिलके बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अवरोध है क्या? नहीं है। यहाँ पे आम, जैसे वहां पे कफ का अवरोध था, यहाँ पे आम है। मैं इसलिए डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने बताया, आमा शब्द बता लंघन में व्यवस्था, पेशेंट को लंघन करने के लिए बोला। ओके, बाद में कफ पित्त हर मींस विरेचन करने के लिए बोला पेशेंट्स को, कफ पित्त हर के विरेचन। यहाँ पे गति के हिसाब से ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बोला, गति के अवरोध, जैसे रक्त पित्त में बोला गया ना, प्रतिमार्गम हरणम च रक्त पित्त, ऑपोजिट साइड पे। तो ये आप इसका देखो कि गति ऊपर के साइड है, ऊर्ध्व गति है, तो इसको हमें अधोगति करना है। तो फिर जरूरी नहीं कि छर्दी के पेशेंट्स को अधोगति मींस आप प्लान करके विरेचन दो। अधोगति आप किसी भी चीज से कर सकते हो, जैसे सिंपल अनुलोम। याद रखना दोस्तों, अनुलोमन, संसरण, भेदन, ये चीज आप पक्का याद रखना। जैसे सिंपल अविपत्ति कर देके भी आप जो छर्दी रुका सकते हो, आमपाचन करके वो रेचक कर सकता है।
जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ छर्दी के पेशेंट को सुच्छेकर और मैंने अविपत्ति कर दिया, एक आमपाचन किया और एक रेचन किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्यों दिया मैंने अविपत्ति कर, अविपत्ति कर क्यों दिया? लोगों को लगेगा कि ऊर्ध्वगति का अधोगति कर रहा है मींस वोमिटिंग का पेशेंट है, सर कहाँ हम पंचकर्म प्लान करेंगे? ऐसा नहीं है। पेशेंट आया, ऊर्ध्वगति है, वोमिटिंग हो रहा है, मैंने सूच्य कर दिया, उसके साथ सिर्फ अविपत्य कर दिया तो भी पेशेंट को ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अनुलोमन जो करना है वात का, वो सिंपल मेडिसिन से भी होता है, जरूरी नहीं कि पंचकर्म। हमें बताया गया है कि अल्प दोष, मध्य दोष और बहुदोष। तो कभी कभी पेशेंट का अल्प दोष होता है, तो लंघन पाचन एंड औषध बाद में आप उसको दोषावसेचन कर सकते हैं। तो ये आप सोचो कि वहां पे कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये तीसरा केस हो गया ऊर्ध्वगति का, छर्दी का, तो हमें उसको अनुलोमन करना है। नेक्स्ट आप देखोगे गतिनुसार चिकित्सा, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर मुझे ना वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है और उल्टी जैसा हो रहा है और मेरे को सिर में दर्द है। मैं माइग्रेन का ट्रीटमेंट पूरा पुणे, पूरा मुंबई या पूरे जगह के घूम पे आई हूं, लेकिन मुझे हेडेक कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका वोमिटिंग हो रहा है यार, ये आप बोलोगे छर्दी में सर ने बोला विरेचन करो, ओके, बट दिस इज द केस ऑफ आम्लपित्त, ऊर्ध्व आम्लपित्त। अभी ऊर्ध्व आम्लपित्त में आप अभी तक तो मैंने पढ़ाया कि गति के ऑपोजिट में ट्रीटमेंट, जो पेशेंट को ऊर्ध्व गति, कास है, श्वास है एंड छर्दी है, उसको सबको रेचन लेना है, नीचे निकालना। बट आम्लपित्त में पहला रेफरेंस बहुत अच्छा बताया गया, पूर्वम तु वमनम कार्यम, उल्टी हो रहा है उसको पहले निकालो, उल्टी कराओ गति के हिसाब से, और ऊर्ध्व आम्लपित्त को वमन, अधोग आम्लपित्त को विरेचन, अभी नीचे से जो विरेचन उसको गति के हिसाब से निकालो। है ना इंटरेस्टिंग? आप अभी बोलोगे डॉक्टर ये डिफिकल्ट इन पेशेंट, नो इट्स नॉट डिफिकल्ट इन पेशेंट, ओके। आपको डिफरेंशिएट पेशेंट का हिस्ट्री लेके पता चलता है, ओके। आम्लपित्त कितने दिनों से, क्रॉनिक आम्लपित्त रहता है, वॉमिटिंग आता है, कभी कभी अर्टिकेरिया रहता है पेशेंट्स को, शीतपित्त रहता है, ठीक है। सो और मैं आपको विश्वास नहीं करोगे, जो भी एलोपैथी आयुर्वेदिक कुछ भी प्रैक्टिस करेगा, ऊर्ध्व अधो आम्लपित्त आपको मिलते ही है। तो ऐसा रेफरेंस की उसकी गति के हिसाब से ट्रीटमेंट करो, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। योग रत्नाकर ने बहुत अच्छी तरह से बताया। केस नंबर 4 में है हमें कि गति के हिसाब से ट्रीटमेंट करो, ओके। अगेन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। अभी ये जो ऊर्ध्व गति पेशेंट को हो रहा है, पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर मुझे वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो आप जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट पैन 40 रैंटैक, ठीक है, पैन 40 और रैंटैक चालू करते हैं। पैन 40 और रैंटैक से क्या होता है, जो पित्त ऊर्ध्व आ रहा है वो दबता जाता है, ठीक है। दबता जाने के बाद वो तिर्यक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, डॉक्टर मेरे को शीत पित्त और उदर शरीर पे पित्त होता है। आप उनकी पक्का हिस्ट्री लेना, आप कितने दिनों से, पक्का पूछना कितने दिनों से आप हाइपर एसिडिटी कम होने की दवाई ले रहे हो, बोलते बहुत दिनों से ले रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर जोक मैं बोलता हूँ आपको, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाला बंदा था, उसको मैंने बोला ये ऐसा ऐसा होता है, तुम रैंटैक और पैंडी कम करो। तो 10 दिन के बाद फोन आया, सचिन तुझे पता है कि मैं पैंडी देता हूँ अभी। बोले ये क्या है पैंडी? बोले डोम्पेरिडोन है, जो ऊपर का हाइपर एसिडिटी है वो नीचे से निकालता है, ठीक है। तो वो तिर्यक नहीं जाएगा तेरे हिसाब से, वो ऊर्ध्व का अधोग जाएगा, मैं विरेचन कर रहा हूँ सो कॉल्ड पैंडी से। तो ऐसा नहीं है, वो जो दुष्ट दोष है वो तिर्यक जाते हैं और पेशेंट को कुष्ठ भी फॉर्म करते हैं। तो कुष्ठ में आम्ल पित्त, पित्त वर्धक ये चीज आपको मिलता है। तो ये इसमें आपको याद रखना कि गति अनुसार चिकित्सा करना है। अगर गति अनुसार आप चिकित्सा नहीं कर रहे हो तो पाचन देना है, अगर पाचन नहीं कर पा रहे हो तो पैंडी तो नहीं देना, नहीं तो वो गति तिर्यक चले जाते हैं। कोष्ठ, ये हम कभी दूसरे दिन पढ़ेंगे, कोष्ठ शाखा मर्मास्थि, कोष्ठ बीच का, कोष्ठ में जो दोष है वो शाखा में चले जाते हैं, साइड में चले जाते हैं। सिंपल सी चीज है यार, वो नीचे भी जगह नहीं मिल रहा है, ऊपर भी बहुत सारे लोगों को मलाष्टम भी रहता है, तो शाखा में चले जाते हैं। फिर पेशेंट्स को शाखा रक्तादय मीन्स रक्त, रस, मांस, यू कैन इमेजिन। आप इसके बारे में ना कैंसर तक सोच सकते हो। जो दोष इसमें है, कोष्ठ में है, ओके, कफ है, ओके, पित्त है, जो बाहर कभी निकले ही नहीं, ना वमन से ना विरेचन से, वो जो कोष्ठ में दोष है वो तिर्यक जाने के बाद कहाँ ट्यूमर कर सकते हैं। बहुत सारे वैद्य यहाँ पे पुणे में कैंसर को तिर्यक गति
के हिसाब से भी देखते हैं। जनरली आप ल्यूकेमिया देख लेना, रक्तगत दोष चला जाते हैं तो तिर्यक के हिसाब से, तो वो पक्का देखना। नेक्स्ट, ठीक है, देख अभी अधोगति ऊर्ध्वगति के हमने 4 केसेस, अधोगति के हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी ऊपर हमने देखा केस नंबर 1 में कि पेशेंट को अनुलोमन करना है, दूसरे केस में भी देखा कि अनुलोमन बस्ती करना है, तीसरे नंबर केस में हमने देखा कि गति शमन करना है, चौथे नंबर में देखा कि हमने गति अनुसार चिकित्सा करना है, जैसे आम्लपित्त होगा ऊर्ध्व होगा तो ऊर्ध्व कर दो, नीचे होगा नीचे। अभी रक्तपित्त में प्रतिमार्ग ऑपोजिट करना है, ओके। मैं ना हमेशा जब भी रक्तपित्त पढ़ता था, मैं बागलकोट में ही पढ़ा, तो मैं सोचता था कि रक्तपित्त का पेशेंट मेरे पास आएगा नहीं, ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रक्तपित्त पेशेंट मेरे पास आए, ये रक्तपित्त में ब्लीडिंग जा रहा है, ऊपर से ब्लीडिंग है, नीचे ब्लीडिंग, कौन मेरे पास आएगा यार, कोई भी नहीं आएगा मेरे पास। पर दोस्तों रक्तपित्त को तब मैं समझ नहीं पा रहा था, बिकॉज मेरी बुद्धि एकदम अल्प बुद्धि अभी भी है। रक्तपित्त, मैं आपको एक अच्छी केस बताता हूँ। पेशेंट आती है आपके पास, 45 ईयर की फीमेल, अ केस ऑफ फाइब्रॉइड, ब्लीडिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग। डॉक्टर ने बोला है कि मुझे ऑपरेट करना है, हिस्टेक्टोमी बोलना है। पेशेंट को वहां पे आप स्तंभन नहीं दे सकते, अगर आपने स्तंभन दिया तो दूसरी व्याधि फॉर्म हो जाती है। मैं दूसरी एग्जांपल भी आपको दूंगा। मैं ऐसे पेशेंट्स को वमन देता हूँ, प्रतिमार्गम हरणम च रक्तपित्त, प्रैक्टिकली पेशेंट का जब थोड़ा ब्लीडिंग कम हो जाएगा, मैंने एक पेशेंट का तो ब्लीडिंग में भी वमन दिया है, सद्य वमन, जो गति है वायु का वो मैंने प्रतिमार्ग किया, ऑपोजिट किया, रक्तपित्त का डिफरेंशियल। बेस्ट रिजल्ट, एक पेशेंट थी, पॉज लेने के बाद भी पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, प्रोजेस्टेरॉन लेती थी तब तक रुकता था, प्रोजेस्टेरॉन बंद किया होता था। मैं बोला इस बार आने दे, आने के बाद पेशेंट को बुलाया, इमीडिएटली वमन किया, पेशेंट का पित्त पूरा बाहर निकल गया, पेशेंट का ब्लीडिंग रुक गया, ठीक है। तो फाइब्रॉइड, द केस ऑफ फाइब्रॉइड, नाउ थिंक अबाउट रक्तपित्त, फाइब्रॉइड एंड रक्तपित्त। केस नंबर 2, उसी में आप देखोगे बहुत बार ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, धूप में, हुगली में आप जाओगे, धूप में बहुत बार क्रिकेट खेलते हैं, इसके वजह से कंटिन्यूसली आता है। जब तब आप चंद्रकला देते हो, कामदूदा देते हो, शीतवीर्यात्मक सारीवा देते हो, मनिष्ठा देते हो, तब तक वो ठीक होता है। बट लॉन्ग टर्म आपको विरेचन देना चाहिए पेशेंट्स को, बिकॉज वो ऊर्ध्व रक्तपित्त है, ठीक है, ऊर्ध्व रक्तपित्त है। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, केसेस ना आपको बहुत मिलेंगे। डायबिटीज का पेशेंट देखा है, डायबिटीज, मधुमेह के पेशेंट्स को ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, आंखों में ब्लीडिंग होता है बिकॉज शुगर नहीं है। वैसे पेशेंट्स को यहाँ पे वन आइज के ऊपर काम करने वाले डॉक्टर है वो विरेचन देते हैं, ही थिंक्स ऊर्ध्व रक्तपित्त, तो अधो रक्तपित्त का ट्रीटमेंट करके आप विरेचन देते हो, ठीक है। तो ब्लीडिंग नाक से आना, आईज में जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे ब्लीडिंग होता है वहां पे यूज कर सकते हो। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, इंट्राकरेनियल ब्लीड में के बाद होने वाला पक्षाघात, जरूर है पक्षाघात का ट्रीटमेंट भी विरेचन है, लेकिन इंट्राक्रेनियल ब्लीड जो होता है, ओके, रक्तगत पित्त के बाद होने वाला जो ब्लीड है वहां पे भी आप विरेचन यूज कर सकते हो। तो गति का ऑपोजिट, प्रतिमार्ग करना। अभी आप सोचो गति का इंपॉर्टेंट कितना है, वो हमें पता रहना चाहिए, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अधोगति, अतिप्रवृत्ति, अभी ये अधोगति जो था, ओके, उसको हमने ऑपोजिट किया। अभी अधोगति का और एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। पेशेंट आया आपके पास अतिसार का, ठीक है, अतिसार का पेशेंट आया, अतिसार। और मैं ना ऊपर के बारे में ना आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारे पेशेंट्स का या फीमेल्स का भी घर पे शादी रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो वो ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, जनरली मेंसेस नहीं आने के लिए प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं, प्राइमोल्यूट एन, आपको पता रहेगा। वो लेने की वजह से जो दूषित रक्त बाहर जाता है फीमेल्स का, वो अवरोध होता है। वो अवरोध होने की वजह से पेशेंट्स को त्वचा विकार बहुत बार फॉर्म होता है। इसलिए हिस्ट्री पूछते वक्त अभी देखना नीचे से हमें बताया गया है कि जो भी दूषित रक्त है उसको रोकना नहीं है, उसको जाने दो, बस पेशेंट का बल देखो। अगर बल नहीं होगा तो आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन पेशेंट का बल है, अभी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन आ रही मींस वो बलवान है, लेकिन वो उसको रोकते हैं। रोकने की वजह से होने वाले त्वचा विकार, होने वाली बड़ी बीमारी, तो वो तिर्यक गति में हम आगे देखने वाले। तो आप ये देखना ऊर्ध्व, अध और तिर्यक। अधोगति, अतिप्रवृत्ति। जो अधोगति है, ओके, पेशेंट का जैसे अतिसार है,
अभी अतिसार में भी जैसे छर्दी में सिर्फ आम था, वैसे अतिसार में भी आम है। ओके, अतिसार में कोई अवरोध नहीं है, ऊपर से कोई अवरोध है इसका और बाद में है, ऐसा नहीं। तो अतिसार का उन्होंने क्या बताया कि संग्रहण करना है। अतिसार में ये नहीं बताया गया, हाँ अतिसार में ये बताया गया कि आप न तो संग्रहण दे पूर्वम अतिसार, आप उसको संग्रहण मत करो, पेशेंट का बल है वैसा आ जाता है। अभी आप बताओ कि ये केस मुझे कहाँ मिलेगा, अतिसार का पेशेंट। अतिसार के में 2-3 टाइप्स है। एक पेशेंट है, हम ना अतिसार सिर्फ एक ही सोचते हैं कि बहुत बार लूज मोशंस खाने के बाद, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं आईबीएस के, डॉक्टर में दिन में 7 बार जाती हूँ, 6 बार जाती हूँ, मुझे वीकनेस नहीं, मुझे थोड़ा 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 करके ही होता है, ठीक है। मैं दिन में 7 बार जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके होता है। उस पेशेंट को स्तंभन नहीं करना, स्तंभन मीन्स कषाय रसात्मक द्रव्य यूज नहीं करना। उस पेशेंट को आप ग्राही यूज करो। दीपनम पाचनम यत्स्यात् उष्णत्वात् द्रवशोषकम ग्राही चच्च यदा शुंठी जीरक गजपिप्पली। कैसे करना है, जीरक आद्यास आप यूज करो पेशेंट को। ओके, पंचामृत पर्पण यूज करो, आप पेशेंट को लघु सूच्यकर यूज करो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। नाउ जो अधोगति वाला अतिसार है, अगेन गति के ऊपर, उस पेशेंट का हम जो इंटेस्टाइन है सिंपल लैंग्वेज में, उसका हम रक्षण कर रहे हैं। ना उसको हम वमन दे रहे हैं, ना हम उसको विरेचन दे रहे हैं, ना सिर्फ हम उसको पाचन कर रहे हैं। अगेन लास्ट मैंने बोला लंघन पाचन उसके हिसाब से, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, अगर उसको आप अतिसार को संग्रहण किया तो नीचे जो बताया गया दंडालस्क आदमान ग्रहण या अर्शस्थ, याद रखना दोस्तों, कोष्ठ जो ऊर्ध्व अधिगति है ना, जो निकलने वाली प्राकृत चीजें हैं, उसको आपको स्तंभन करना नहीं है, नहीं तो वो तिर्यक चली जाती है, ठीक है। जैसे और तिर्यक में गई तो तिर्यक आर वेरी डेंजरस बिकॉज प्रायस तिर्यकता दोषा क्लेशयन्त्य आतुराश्चित। क्लेशयन्त्य बहुत तंग करती है। मैंने आपको बोला ना, चोर अपने घर पे होगा तो उसको निकालना आसान है दोस्तों, लेकिन वो दूसरे घर पे गया तो उसको ढूंढना पड़ता है, फिर वारंट लेके आना पड़ता है, दूसरे घर की तलाशी लेनी पड़ती है, फिर उसको निकाल के ये करना। वैसे ही स्नेहन करना पड़ता है, स्वेदन करना पड़ता है, फिर उसको कोष्ठ में लाना पड़ता है, फिर खींच के निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो सोचते हो पेशेंट का देह जैसे वारंट, अग्नि, दूसरे को तकलीफ नहीं होगा ना, बल क्रिया, ये सब हमें देखना पड़ता है। उसके हिसाब से कोष्ठ में लेके हमें ज्ञात्वा प्रपन्नम यथासन्नम विनरते, जहां जहां से है ना वहां से निकालना पड़ता है। तो तिर्यक दोष, तिर्यक गति इज वेरी डेंजरस, वेरी तकलीफ वाला चीज है, तो उसको आप ज्यादा होने नहीं देना, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कभी कभी ना आपके पास नॉर्मल अम्ल पित्त का पेशेंट भी आएगा, अगर आपको उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया ना, या आपको अर्श का पेशेंट भी आ सकता है, रक्ताजर्श, उसको आपने स्तंभन दिया तो मे बी वो नेक्स्ट टाइम आपके पास सोरायसिस लेके आए। तो सोचो, क्योंकि आपने वहां पे स्तंभन दिया, आपने वहां पे अच्छी तरह से पेशेंट का बल था, फिर भी आपने स्तंभन दिया और पेशेंट का वो तिर्यक गया, तिर्यक जाने के बाद स्किन डिसीज आ गया। तो हमें बताया गया ना कि व्याधि का चिकित्सा करते वक्त अच्छा वैद्य का काम है कि दूसरी कोई व्याधि फॉर्म न करे। ओके, वो ही श्रेष्ठ वैद्य है, ठीक है। तिर्यक दोष लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो सारे शरीर में तिर्यक दोष फैल गए, ओके, तो धातु में लीन हो गए। ओके, तो मकबट का फेमस श्लोक है, आपको सबको बायट है, मैं ज्यादा इसके पाचने दीपने स्नेह स्थान स्वेदस्तु परिष्कृत, उसको स्नेह पाचन दो, दीपन दो, स्नेहन दो, स्वेदन दो, फिर उसको कोष्ठ में लेके आओ, और जहां पास में रहेगा, जैसे आमाशय होगा तो वमन कराओ, पक्वाशय रहेगा तो विरेचन कराओ, ठीक है। तिर्यक दोष ऐसा हम करते हैं तो हर एक डिसीज में करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमने कर दिया, वो कर नहीं सकते। उस कारण मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। डिसीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ वोमिटिंग एंड एक्सट्रीम, जैसे मैंने आपको बताया कि वोमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को इमसेट दिया, अंडेम दिया, तो वो अगर हम पेशेंट को रुकाया तो वो साइड में चला जाता, ठीक है। नाउ आप सोचना ये कोष्ठ है और ये शाखा है, सिंपल लैंग्वेज। तो जब भी वो तिर्यक गति में चले गए, तिर्यक गति से दोष शाखा, कोष्ठ से शाखा में चले गए, तो मुझे बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि छर्दन करो, ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो कोष्ठ से वमन करवाओ, और जो शाखा में गए उसको रक्त मोक्षण करो, ठीक है। फिर वृक्षावन्नपान करो, व्यायाम करो, विरेक करो। लेकिन पेशेंट आपके पास आया, अर्टिक्रिया का पेशेंट हमेशा आता है, ऐसा पेशेंट उल्टी, डॉक्टर मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है, शरीर पे पित्त है, आपको 10 दिन में रिजल्ट देना है, नहीं तो वो भाग जाएगा,
क्योंकि ना आप कभी फील करो अर्टिकेरिया और प्लस एंजियोडिमा का पेशेंट आता है, शीत पित्त और उदर दर्द का, बहुत इचिंग होता है, हम पेशेंट को फटकी नहीं सुलाते हैं और रक्त मोक्षण देते हैं, बल देख के काल देख के और रुक्ष नहीं, 70 ml रक्त मोक्षण किया। अभी मैंने क्या किया, ये कोष्ठ है, कोष्ठ का पित्त बड़ा 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 और शाखा में फैल गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अविपत्तिकर चूर्ण दिया। मेरा प्रिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा, अविपत्तिकर चूर्ण रहेगा जो शाखा का बाहर निकालेगा, छर्दन में कभी कभी नहीं कर सकता, डिपेंड अपॉन वक्त पर ये। तो मैंने पेशेंट का अनुलोमक किया, वो गति जो ऊर्ध्वा आ रहा था पाचन करने के लिए सूक्ष्म कर दिया, अधोक गति दिया पेशेंट को, और जो शाखा में फैले हुए थे उसको मैंने रक्त मोक्षण किया। बाकी मैंने रक्त पाचक यूज किया या आरोग्यवर्धनी यूज किया, जो रक्त का बचा हुआ शेष दोष निकालेगा। क्या शेष दोष, ठीक है, तो शेष दोष शाखा का वो रक्त पाचक रहेगा, गोदंती रहेगा, आरोग्यवर्धनी का वो कम करेगा। तो आप ये बेसिक सोचो तो फटाफट आपको रिजल्ट मिलता है, पेशेंट ठीक होता है। मैंने गति को कैसे किया, ऊर्ध्व का अनुलोमक किया और शाखा में फैला हुआ तिर्यक गति के बारे में बाद में मैंने विरेचन प्लान किया, लेकिन मैंने तभी तो जो स्थानिक दोष थे उसको फटाफट ठीक कर दिया, ठीक है। सो थिंक ऑन इट दैट वे, ठीक है। बस और एक एग्जांपल तिर्यक का कामला, ओके, पांडुरोगी तो यत्तदम पित्तलानि निषेवते, जो पांडुरोगी पेशेंट है उसका शाखा, इसलिए तो बहुपित्तशा कोष्ठ शाखा गया, मतलब दोष कहाँ पे है, कोष्ठ में भी है, शाखा में भी, बड़ा 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 और शाखा में है, ओके। तो ये बहुत अच्छा, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप देखोगे दोस्तों, कामला का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ आयुर्वेदा अच्छी तरह से कर सकता है। मॉडर्न में उड़ी लीव देते हैं सिर्फ हम, आरोग्य आप देखना, ओके, शाखा में गए हुए दोष हैं उसको आरोग्यवर्धनी क्या करता है, शाखा से कोष्ठ में खींच के लेके आता है, कोष्ठ में, ठीक है, आरोग्यवर्धनी। अगर आप देखोगे तो भेदन है कटुकी, पित्त रेचनी, व्हाट इज रेचन, रेचन पित्त रेचन, जो शाखा का दोष है वो आरोग्यवर्धनी इसमें कोष्ठ में लेके आया, ओके। मैंने सूची कर दिया, कामली तो विरेचनी ओविपत्ति कर दिया, पेशेंट का जो कोष्ठ में बचा हुआ, देखो पेट का जो पित्त है वो निकल के शाखा में चला गया, तो पेट का जो पित्त है मैं अविपत्तिकर से निकला, शाखा का जो पित्त है मैं आरोग्यवर्धनी से नीचे निकाल के लेके आया, जो उसका गति था तिर्यक वाला वो मैंने पहले अविपत्तिकर से रोका, और जो दोष गए थे वो वापस कोष्ठ में लेके आके निकाला, और जो शाखा में बचे हुए दोष है उसको मैंने रक्तपाचक या गोदंती ऐसा यूज किया, ठीक है। तो इतना सिंपल ट्रीटमेंट, पेशेंट का बिलिरुबिन ऐसे खट कम होता जाता है, रिपोर्ट्स आफ्टर 5 days, आफ्टर 10 days, सुवर्ण सूच्यकर, आरोग्यवर्धनी, अविपत्तिकर चूर्ण, बाद में आप प्लान करके उसको विरेचन। बहुत सारे केसेस जहां पे असाइटिस फॉर्म होने वाला था या माइल्ड असाइटिस था बिकॉज ऑफ सिरोसिस डिग्री 2, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं बिकॉज हम यकृत के ऊपर जाने वाले दवाई हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ गति के बारे में सोचो, जो गति गया कैसे और उस गति को मैं ठीक किया, ठीक है, क्योंकि आज गति के बारे में बोल रहे हैं। तो कोष्ठ टू शाखा हमें पता है ये कैसे जाता है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। ब्रिंग दोष फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ, शाखा से कोष्ठ लिया, वृद्धा दृश्यविंदना, ओके, स्त्रोतोमुख विशोधनाथ, शाखा मुक्ता मलाम कोष्ठम आयुष्य यंति निग्रहण, ये शाखा टू कोष्ठ, कोष्ठ टू शाखा, जो हमें ये दो पता है व्यायाम की वजह से, उष्ण की वजह से, ओके, और स्त्रोतोमुख विशोधन की वजह से जो शाखा का दोष है वो कोष्ठ में आ गया, अभिश्चंदन की वजह से, पाक की वजह से। मैं ना आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली, वैतरण बस्ती, माफ करना आज पेशेंट है इसलिए मैं वैतरण बस्ती का श्लोक नहीं डाल सका, डालना था, मैं कल से लिख के रखा था कि मुझे वैतरण बस्ती के बारे में बोलना है, बिकॉज वो ना गति को उल्टा करता है। वो कैसे गति को उल्टा करता है, वैतरण बस्ती में क्या है, पंचकर्मों वाले को सबको पता है, फिर भी मैं 4 चीजें बताऊंगा। चिंच है, चिंचा, सैंधव है, उसके बाद पेशेंट का तिल तेल हम डालते हैं, ओके, चिंचा, सैंधव, तिल तेल और गुड़ डालते हैं, ओके, और पेशेंट को हम बस्ती देते हैं इतना मिक्स करने के बाद, चिंचा सैंधव के साथ और उष्णता के बाद, ठीक है। अभी आप सोचो मेरे पास आमवात का पेशेंट आया ना, आमवात का गति कैसे गया, ओके, पेशेंट आमवात का संप्राप्ति जो है वो पेशेंट का पहले आम कोष्ठ में फॉर्म होता है, ठीक है, फिर आपने खाना खाया और आपने वॉक किया, वहां पे खाना खाने की वजह से पहले ही आपका अगर अग्नि अच्छा है तो बात अलग है, लेकिन अगर वहां पे आम फॉर्म हो गया
तो आपने व्यायाम किया तो वो आम वहां पे निकल के स्रोतों में गया, और जहां जहां पे कफ का स्थान है, जैसे संधि, ओके, वायुना प्रेणोदयामा श्लेष्म स्थानम प्रधावति, संधि, वहां पे जाके अटक गया। ठीक है, तो आम कहाँ पे है, शाखा में है और थोड़ा कोष्ठ में भी है, इसलिए पेशेंट को भूख नहीं लगता, इसलिए पेशेंट को सुबह उठने के बाद स्टिफनेस लगता है। तो इसको हमें कम करना है, तो ये हम अगर वैतरण बस्ती से कर रहे हैं। ठीक है, तो शाखा, कोष्ठ टू शाखा, जो तिर्यक गति से आम चला गया, अभी हम उसको कोष्ठ में लेके आए। मैं अभी तक अराउंड 50 to 60 पेशेंट्स को वैतरण बस्ती दे चुका हूं, उस एक्सपीरियंस से बोलता हूं। वैतरण बस्ती का जो कंटेंट है ना, वृद्ध्या, चिंचाना दोषों को वृद्धि करता है। अभिष्यंदन, स्वेदन देते हैं हम पेशेंट्स को। ठीक है, ओके, स्नेहन देते हैं, स्नेहनम 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 विष्यंदम मार्दम क्लेदकारकम। सो विष्यंदन का काम करने का तिल तेल करता है। ठीक है, स्नेहन का काम विष्यंदन। पाक, पाक का काम किसका काम है, सैंधव का। स्त्रोतोमुख विशोधन का किसका काम है, सैंधव का। ठीक है, ये दोनों का काम। तो यहाँ का जो दोष है ये वैतरण बस्ती की वजह से कोष्ठ में आ जाता है। ठीक है, तो 5 दिन अगर आप वैतरण बस्ती दोगे तो शाखा का जो भी दुष्टि है वो कोष्ठ में आ जाएगा रिगार्डिंग आमवात। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमेशा मैंने दोनों टाइप करके देखा है। वैतरण के बस्ती के साथ दवाई देना चाहिए कि नहीं, तो मैं नहीं देता, बिकॉज आप दोषों को बढ़ा रहे हो, शाखा से कोष्ठ में लेके आ रहे हो, तभी आप शमन दवाई मत यूज करो। मैं पहले यूज करता था, बाद में मैंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किए। सिर्फ 5 दिन पेशेंट को वैतरण बस्ती दिया, तो जो भी साइड वाले दोष थे शाखा वाले वो छूट के कोष्ठ में आ गए 5 दिन के बाद। लेकिन 5 दिन आपको पेशेंट बहुत तंग करता है, बिकॉज यहाँ पे आम और वात है। आपने आम निकाल दिया, पेशेंट का स्टिफनेस कम हो गया, शोथ कम हो गया, लेकिन पेशेंट का जो वहां पे वात बढ़ता है, पेशेंट आपको रात को फोन करके बोलता है, डॉक्टर मेरा दुखना बहुत बड़ा है, उसको बोलने का रुक। वो बोलेगा दूसरे दिन, डॉक्टर मेरा दर्द बहुत ही बड़ा है, उसके बोलने का रुक। सिर्फ आप स्वेदन करते रहना, प्लेन स्वेदन, कोई लेप नहीं लगाना, कोई स्नेहन नहीं। विषयकर्म बोलते हैं फिर भी वो स्नेहन ही है, कुछ नहीं करना, आम बढ़ाता है। सिर्फ स्वेदन करते रहना पेशेंट का। 5 दिन के बाद उसका जो भी दोष है ना कोष्ठ में आ जाता है। 6ठे दिन में दशमूल, रासना और एरंड, इसका थोड़ा दूध डाल के और निरूह बस्ती देता हूँ 700 to 800। जो भी कोष्ठ में आए हुए है दोष है ना, फटके निकल जाते हैं। 8वें 9 दिन आपको वो हाथ जोड़ता है, डॉक्टर इतना ठीक मुझे लगा ही नहीं। 2 निरोह बस्ती देने के बाद आप जब अनुवासन चालू करते हो, ओके, तब आप वहां पे चेक करना कि पेशेंट का स्टिफनेस है कि नहीं। तो ये है वैतरण बस्ती, आप जरूर यूज करना इस वे से। लेकिन 5 दिन पेशेंट को संभालना, क्योंकि 5 दिन आपको पेशेंट बहुत तंग करता है रात को। वो बोलता है, उसको पेन होता है ना, आम और वात, वो आम निकाल दिया आपने फटक से, सिर्फ वहां पे खाली वात रह गया। ओके, तो वैतरण बस्ती आप पक्का देखना और आम वात में पक्का देखना। ठीक है, तो ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया, आई एम हैप्पी। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो श्लोक है ना, मैंने 2nd ईयर BMS में बायोट किया था। डॉक्टर GS कुलकर्णी सर ने मुझे ये पूरा बायोट करवाया था, मुझे पक्का याद है। और ना इसका इंपॉर्टेंस ना मुझे अभी पता चलता है। अभी तक आपने ये पढ़ा कि जो गति है ऊर्ध्व, अध और तिर्यक जाति कैसे है, लेकिन अभी हम ये पढ़ेंगे कि जैसे वैतरण बताया ना मैंने, कोष्ठ में आ गई, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि वो वापिस आती कैसे है। ठीक है, तो तत्रोष्ण, अभी कोई भी वमन, आपने पेशेंट वमन मदन फल का के ऊपर है, ये चरक कल्पस्थान का श्लोक है। ओके, तब मैंने बात किया था। तत्रोष्ण तीक्ष्ण, जो भी दवाई आप दे रहे हो, जो शाखा का दोष हमें पेट में लेना है, तो जैसे वमन का दवाई रहेगा, विरेचन का दवाई रहेगा, उसका उष्णता की वजह से, उसका तीक्ष्णता की वजह से वो सूक्ष्म है, व्यववाही है, विकासी है, वो हृदय में जाके स्थूल अणुस्त्रोतोभ्य, छोटे 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 स्त्रोतस में जाती है और उसके अग्नेयत्वाद की वजह से विच्छिन्नन करती है, तैक्ष्ण्या कट करके विच्छिन्नन करती है, और पहले स्नेहन स्वेदन किया हुआ रहता है, और वो जो शाखा में बीच में स्त्रोतस में आके सीधा सा कोष्ठ में आ जाती है। इतना अच्छा रेफरेंस। और वो दवाई अगर वो पृथ्वी महाभूत रहेगी तो विरेचन करेगी, अग्नि महाभूत रहेगी तो वमन करेगी, सिंपल है। ठीक है, अगर विदाउट स्नेहन स्वेदन करके आपने वमन दिया पेशेंट को, तो सिर्फ आप कोष्ठ शुद्धि करते। तो तिर्यक गत हुए दोष आते कैसे हैं,
वमन और विरेचन के मेडिसिन से उनके उष्ण सूक्ष्म वैवाही विकासी उसके जो शरीरगत दोष है अग्नित्वात और तीक्ष्णत के वजह से वो नीचे से आके पेट में आके वोमिटिंग होता है। इसलिए हमें 48 मिनट्स वोमन का दवाई देने के बाद रुकने के लिए बोला गया। इसकी वजह से पेशेंट्स को अनईजी फील होता है 48 मिनट्स तक बोला गया है। मींस एक मुहूर्त, वो जो रेफरेंस है आप सिद्धि स्थान में पढ़ोगे तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज दी वमन कार्मुकत्व। जो तिर्यक दोष गए हुए हैं वो हम लेके कैसे आएंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे, थोड़ा फास्ट लेंगे, 10 मिनट आखिर के बचे हुए हैं। विच दोष फर्स्ट ट्रीटेड। ठीक है, जैसे प्रकोपित दोष आ गया ऊपर, ठीक है, तो पहले मैं क्या ट्रीट करूं। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास, ओके, कि पहले जैसे पेशेंट को ना श्वास है, खांसी, और पेशेंट को ना ड्राई कफ भी है पेशेंट को अस्थमेटिक का हिस्ट्री है और ड्राई कफ भी है। तो आप सोचते हैं मैं घुर्तो दूं कि ना दूं। अगर मैंने घुर्तो दिया तो पेशेंट का कफ ना बढ़ जाए, और मैंने अगर प्लेन ताली शादी दिया तो वात तो कम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कफ तो कम हो जाएगा ताली शादी की वजह से, लेकिन थोड़ा रुक्षता की वजह से वात ना बढ़ जाए। ये हम हमेशा सोचते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। तो विच दोष फर्स्ट ट्रीटेड, ये ना बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि तो मैं भी बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो ज्यादा बलवान है उसको आप ट्रीट करो, डिपेंड अपॉन बल। ओके, और एक एग्जांपल इसके बारे में आमाशय वात में बताया। आमाशय वात का रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान 28वां चैप्टर, जो वात व्याधि में है। वात व्याधि, ओके, है वात व्याधि, पेट में दर्द है आमाशय में, और बोला गया वमन करो। जस्ट यू इमेजिन, वात व्याधि में वमन बोला गया। पहले तो बोलोगे यार वमन किया तो वात बढ़ सकता है, लेकिन वहां पे कफ, वो दोष जो स्थान है वो आमाशय है। ये ना ऐसा केस ना आपको बहुत बार मिलेगा ना, शिरोगत कफ यहाँ पे, ठीक है, सर्दी होना और सिर दर्द करना। बहुत लोगों की मम्मी याद है कि आपको ऐसे सिर में पट्टी बांध के सो जाती है हेडेक की वजह से। वो आप डिफरेंशिएट करो कि वात है, पित्त है, कफ है। जैसे पेशेंट को ना बहुत दर्द होता है, अभी आप गणपति का ये चल रहा है, तो आपने कोई पास में बैंड लगाया कंटिन्यूसली, या हेडफोन आपने 1 घंटा मेरा लेक्चर और 2 घंटा मैंने बताया, तो आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वात शिरोशो। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली मेरे जैसा चाय पियोगे 2 बार 3 बार, तो आपको पित्त शिरोशूल स्टार्ट हो जाएगा। तो आमाशय या आम पक्वाशय, नाभिरामाशय, फेदोरसिका, रुद्रारसा, तो वहां का पित्त यहाँ पे चला गया। ठीक है, और कफो, पेशेंट को साइनसाइटिस रहता है, ओके, उसके वजह से आप पानी में भीग गए और सर्दी हो गया, तो आपको सर्दी होने की वजह से आपको सिर दर्द स्टार्ट हो गया, तो दवाई चेंज है। ठीक है, तो कौन सा वहां पे दोष ज्यादा है? तीनों में शूल रहता है, तीनों में शूल रहता है। अभी शूल कम करना है तो आप क्या बोलोगे, सर न मैं स्नेहन करूंगी, ठीक है, मैं स्नेहन करूंगा तो मैं नस दे दूंगा। अगर वो कफज की वजह से पेशेंट का तकलीफ है, सर्दी है, सर्दी के में आपने नस्से डाला तो वो और बढ़ेगा, पेशेंट आपको चिल्लाएगा। ठीक है, फिर सर मैं एक काम करती हूँ कि नस्से नहीं करती हूँ, शुंठी का लेप लगाती हूँ, शुंठ का लेप जो उष्ण है। ठीक है, चलो कफज में तो पक्का काम करेगा, बिकॉज वो सर्दी उसका कम हो जाएगा और उसका शरीर। पातज में भी ओके काम करेगा, लेकिन वापस बढ़ेगा। पित्तज में क्या करोगे, पेशेंट को दूसरे दिन आपको चिल्लाएगा, डॉक्टर मेरा शिरोशूल बढ़ गया। तो वहां पे दोष कौन सा है और उसका उगम स्थान का दोष कौन सा है, गति कैसा गया, उसके हिसाब से आप ट्रीट करो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आखिरी 5 मिनट में ना मैं आपको ना एक अलग कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, जो संप्राप्ति का अलग ही कंसेप्ट है। एक डॉक्टर गोखले नाम के एक वैद्य हुआ करते थे, जो 1960 में एक्सपायर हो गए, पूना में। बहुत उनका एक विचार का ये था जो हम सोचते नहीं है। उनका ऐसा विचार था, इसको हम बोलते पोष्य और पोषक। ये गति के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी कंसेप्ट में आप इसको बिठाओ, वो बैठ जाता है। तो ये मेरा बहुत इच्छा था कि ये मेरा सोच भी है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो आपको बताऊं। इन्होंने ना बहुत अच्छी तरह से एक संप्राप्ति कैसी होती है, या जो दोष रहते हैं 3 दोष, कफ, पित्त और वात, उसके सब टाइप को वो कैसे सपोर्ट करता है और व्याधि फॉर्म होती है ना, उसके हिसाब से इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1956 में। ओके, तो वो आर्टिकल अभी भी पुणे में बहुत बुक्स में पब्लिश होता है। तो उन्होंने ऐसा कहा, इसके लिए ना मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ।
आपका हुबली और बाजू का गांव, ठीक है, ओके, हुबली में एक गांव है, वहां पे एक छोटा गुंडा है, गुंडा में से एकदम टपोरी लड़का है, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां पे ही रहता है, ठीक है, वो आपको तंग करता है, आप उसको बोलते चुप कर बैठ, ठीक है। तो वो उसका कनेक्शन हुबली वाला कोई तो एकदम, कोई तो डॉन आर्मी के साथ होता है, तो वो उसको ना 10 लोग भेज देता है, ठीक है। तो वो 10 लोग उस छोटे गुंडे के साथ मिलके वो पूरे गांव को तंग करते हैं, ठीक है। अभी आप देखना, मैंने अभी ये बहुत चाय पिया, यहाँ का पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, जो पित्त कहाँ पे है, अभी नाभि और आमाशय के बीच में, वहां पे मेरा पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ के शरीर में फैल गया, शरीर में फैलने के बाद यहाँ का जो स्थानिक पित्त है, जो भ्राजक पित्त रहेगा, हम इसको ए पित्त बोलेंगे, जो मेन पित्त है, जो मेन गुंडा, और ये है ना बी पित्त है, जो वो छोटा गुंडा, ठीक है। तो बी पित्त बढ़ गया और मुझे अर्टिकेरिया फॉर्म किया, ठीक है। तो ये ए और ये बी भ्राजक पित्त, ये बड़ा और ये बी में वहां पे अड़ गया और पेशेंट का डिसीज फॉर्म किया। तो ना हम हमेशा अर्टिकेरिया का पेशेंट आया ना, तो हम क्या सोचते हैं, मैं हरिद्रा खंडा देता हूँ, रक्तपाचक देता हूँ। आपने ये सोचो, हरिद्रा खंडा ए पे जाएगा या बी पे जाएगा, हरिद्रा खंडा बी पे जाएगा, रक्तपाचक बी पे जाएगा, सूच्छिकर कहां पे जाएगा, ए पे जाएगा, और विपत्तिकर कहां पे जाएगा, ए पे जाएगा। अच्छा, ये पढ़ना क्यों है, एग्जांपल दे दो, एक्जिमा का पेशेंट आया, ओके, आपके पास, आपने रक्तमोक्षण किया, आपने बी प्रॉब्लम ठीक किया, ठीक है, आपने रक्तपाचक दिया, आपने बी प्रॉब्लम ठीक किया, लेकिन ना आपने आरोग्यवर्धनी दी, ना आपने कोष्ठ के बारे में, जो ए वाला एक्जिमा के पेशेंट को ठीक हो गया, 15 दिन 1 महीना पेशेंट बोला डॉक्टर यू आर वेरी गुड डॉक्टर, क्योंकि आपने बी ठीक किया, लेकिन जो ए का सप्लाई है वो वापस 15-20 दिनों के बाद वापस वहां पे आता है और बी पे आके बैठ जाता है और पेशेंट होता है। इसको पोष्य और पोषक बोलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ओके। तो आप अभी सोचो, मुझे बस्ती क्यों देना है, ए के लिए देना है कि बी के लिए देना है, वमन मुझे क्यों देना है, सुंठी कहां पे जाएगा, यष्टि कहां पे जाएगा, उसका गामित्व नाम का जो कंसेप्ट है आप उसको सोच सकते हो और उसके हिसाब से दे सकते हो, इसलिए कोष्ठ शाखा ए बी, ठीक है। तो आप ये सोचो 3:30 बज गए, ये आखिरी श्लोक है, कोई एक क्वेश्चन होगा तो पूछना। उदानम योजयत ऊर्ध्वम अपानम च अनुलोमयत समानम शमयश्चैव त्रिधा व्यानुम तु योजयत प्राणो रक्षस्य चतुर्व्यापी स्थाने यस्य स्थितिर्ध्रुवा, ठीक है। ये आपको सबने पढ़ाया है, फिर भी आपको बोलूंगा, उदान का ऊर्ध्वम अपानम अनुलोमन करना, ये गति के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, पांचों वात के बारे में, समान का समय है, ओके, व्यान का आप त्रिधा देख सकते हैं, ठीक है। सो ये इतना गति है 1 घंटा में, फिर भी आशय अपकर्ष जो वो बताया गया था वो पॉइंट रह गया। देखो, आशय अपकर्ष है ना, मैंने बोला आपको कि प्रॉब्लम पहले तो पेशेंट का कोष्ठ में रहता है, ठीक है, वहां पे पित्त नॉर्मल है, कफमंद है, नॉर्मल पित्त कफमंद और इंक्रीज वात, और वो बढ़ा हुआ वात उस पित्त को लेके जहां जहां लेके जाता है वहां वहां पे पेशेंट को दाह फॉर्म होता है। अच्छा, दाह क्यों फॉर्म होता है, वायु तो योग वायु है, ओके। आप अगर चरक चिकित्सा स्थान 3rd चैप्टर, योगवाही वायु, योगवाही है वो, जिसके साथ मिक्स हो जाता है, मस्त मोला आदमी है, जिसके साथ मिक्स हो जाता है उसके साथ वो डिसीजेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो नॉर्मल है पित्त। एग्जांपल देता हूं, लास्ट 3-4 महीने से मैंने ऐसे 2 लेग जो है पांव में, वहां पे सिर्फ बर्निंग, पाददाह, ठीक है। तो पेशेंट का क्या डिसीज है, पाददाह, ठीक है। पाददाह पेशेंट आया, मैंने फिर बोला पाददाह है, ओके, मैंने चंद्रकला दिया, मैंने कामोदुला दिया, सारीवाद्यास हो दिया, जो भी पित्त हो रहा है, दाह है, मैं बोला पित्त, सब ट्रीटमेंट दिया। पेशेंट 10 दिन के बाद ही बोली ठीक नहीं, अगेन 10 दिन के बाद ही ठीक नहीं है, 20 डेज हो गए, पेशेंट को ठीक नहीं लग रहा। फिर मुझे ये आशा अपकर्ष याद आया, आई स्टार्टेड निर्गुंडी, आई स्टार्टेड योगराज उगुड़ू, और जो गति था और गंधर्व हरित की महावात विध्वंस, तो जो स्थानिक वात था उसका ही गति मैंने रोका और पेशेंट ठीक हो गया। तो थिंक अबाउट आशा अपकर्ष, कैसे पता चलेगा, जो मैंने गलती किया वो आप मत करना, पेशेंट का मैंने हिस्ट्री बराबर नहीं लिया, दैट आई एम एक्सेप्टिंग,
कि पेशेंट का कफ कम था, पेशेंट का वात बढ़ा हुआ था, पेशेंट चंचल था, पेशेंट एसी में रहता था, पेशेंट बहुत भागा दौड़ी करता था, तो पेशेंट का वात वृद्धि के सब सिम्टम्स थे। लेकिन आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम ट्रीटमेंट देते हो वात पित्तघ्न ऐसे दवाई यूज करो जो वात भी कम करे, पित्त भी कम करे, जैसे अमृतादि गुड़। ओके, बाद में जिसे वात भी कम करेगा, पित्त भी कम करेगा। कभी कभी हमें पता नहीं चलता नॉर्मल पित्त, आशा अपकर्ष इज डिफरेंट। आशा अपकर्ष का दूसरा बेस्ट एग्जांपल है शीत पित्त। कभी कभी ना पेशेंट को ना वोमिटिंग का हिस्ट्री नहीं रहता, टैबलेट लिया हुआ हिस्ट्री नहीं रहता, लेकिन पेशेंट बहुत चंचल रहता है, ठीक है, वो नॉर्मल पित्त भी उसको लेके अल्टीक्रिया फॉर्म करता है, ठीक है, तो उस टाइप पे आपको वात का चिकित्सा करना पड़ता है। इस पेशेंट का हिस्ट्री आप पूछना, 100% हिस्ट्री मिलेगा आपको कि डॉक्टर मुझे स्वेटिंग नहीं आता, मुझे स्वेटिंग ही नहीं आता, क्योंकि पेशेंट का ना पित्त इतना ये रहता है कि पेशेंट को स्वेटिंग ही नहीं आता। बहुत भागता हूँ फिर भी कम स्वेटिंग आता है, बिकॉज जो स्वेद अवस्था होता है वही अवरोध रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम सिर्फ बोलते हैं कि तुझे स्वेटिंग आने दे, स्वेटिंग आया तो भी जो मल है वो निकल जाता है और शीत पित्त कम होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, 1 घंटे में मैं इतना ही कवर कर पाया। कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछो। Thank you, Dr. Sachin, for a wonderful session. I think all the students are very much benefited by the practical examples which you have given. So the session is open for discussions. Students, you can please post your questions in the chat box. We'll wait for another few seconds. आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। Yeah, you can directly ask. Yeah. डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Yes. Any questions? ज्यादा बोर हो गया लगता है मुझे, एकदम ऐसे क्लिनिकली बताना चाह रहा था, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं लेकिन Nothing. एनी Final क्वेश्चंस? year. फाइनल ईयर, हाँ अच्छा। Yes. And no questions? ओके, Yeah. I check in the FB also. There are no questions in FB chat box also. नो इशू। No issues. Yes. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मंजुला मैडम। Yeah, there is one question Yeah. in FB. Dr. Manjunath Nayak, super presentation. Congratulations. Kindly explain the Shukra Stambhaka and Shukra Rechaka Chikitsa with special reference to Gati. अच्छा, शुक्र स्तंभक और रेचक। Rechaka with reference to Gati. Special reference to Gati. ओके, सी आई विल शेयर माय पेशेंस ओनली। पेशेंस ना आपको प्रैक्टिकल लगेगा। 4 श्लोक आपको मैं पढ़ाऊं ना तो आपको वो टेम्पररी अच्छा लगता है, बट थिंक अबाउट पेशेंस। केस नंबर 1, ओके, पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर आई हैव नाइट फॉल। बहुत बार पेशेंट आता है, बहुत बार डॉक्टर मुझे ना नाइट फॉल आता है, नाइट फॉल, ठीक है, और आपको मैं सोता हूँ फिर भी शुक्र मेरा बह जाता है, मुझे पता नहीं चलता। तो हम वहां पे सोचते हैं कि हम वहां पे ट्रीटमेंट क्या दें, ठीक है, ट्रीटमेंट। तो ऐसे पेशेंट की आप हिस्ट्री पक्का लो। अपानो अपानगः श्रोणी बस्ति बैठो गुरुगोचरा शुक्र आता गर्भनिष्क्रमण। तो वहां पे अति प्रवृत्ति है, ठीक है, किसका? रिगार्डिंग शुक्र का। तो थिंक अबाउट कि वहां पे मुझे स्तंभन करना है या पाचन करना है, डिपेंड अपॉन पेशेंट। पेशेंट बहुत अगर पतला रहेगा, स्टार्ट स्तंभन, ठीक है, स्टार्ट स्तंभन। एंड ऐसा पेशेंट का अगर स्तंभन पेशेंट का अगर आप करोगे तो पेशेंट का स्तंभन करना ही पड़ता है या आपको पाचन भी करना पड़ता है। जैसे चंद्रप्रभा रहेगा या बल रहेगा, क्योंकि वहां पे अपान का दृष्टि है, बिकॉज अति प्रवृत्ति की वजह से, जैसे गति में आया गया। दूसरा रेचक कब कर सकते हो आप कभी गायनेकोमेस्टिया की केस देखा है? गायनेकोमेस्टिया मींस इंक्रीज ब्रेस्ट साइज। अ मेल पेशेंट, एज इज 20, 22 या 18, वो पेशेंट आते हैं विद द हिस्ट्री ऑफ गायनेकोमेस्टिया। उस पेशेंट का हिस्ट्री देखो, उन्होंने कभी भी उनका शुक्र बाहर नहीं किया होता है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि विमार्ग गमन ऑफ शुक्र, तो वैसे पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरॉन का तकलीफ होके गायनेकोमेस्टिया फॉर्म हो गया। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको शुक्र रेचक देना पड़ता है। तो शुक्र रेचक ऐसा कौन सा दवाई है, तो आप क्या दे सकते हो? क्योंकि हमें शुक्रवर्धक, बलवर्धक, शुक्रवर्धक, शुक्र स्तंभक ही दवाई पता है।
शुक्र रेचक का रेफरेंस बहुत ही कम मेडिसिन में, लेकिन उस जगह पे अगर अपान वायु का आप अच्छी तरह से ये करोगे तो पेशेंट का ठीक होता है। हमेशा शुक्र अवरोधी नहीं रहता, अपान अवरोध भी रहता है, तब भी आप पेशेंट्स को उस बारे में देख सकते हैं। तो शुक्र रिगार्डिंग गति अनुलोमक एंड विमार्गमन, विमार्गमन शुक्र रेचक, अनुलोमक गति अगर पेशेंट को ज्यादा हो रहा है तो थिंक अबाउट पाचन, डायरेक्ट स्तंभन नहीं करना। स्तंभन मेडिसिन आपने दिया तो पेशेंट को स्क्रॉटम में पेन होने जैसा लगता है, ठीक है, तो थिंक अबाउट पाचन। पाचन कौन सा है? चंद्रप्रभा दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से पाचन करता है। उसके बाद यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्तंभन। ओके, स्तंभन में कौन सा मेडिसिन तो आपको पता है, जायफल से लेकर आप अभ्यंतर में अश्वगंधा तक आप पेशेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? वमन भी कर सकते हैं, वमन भी कर सकते हैं, शुक्र रेचक में ना वमन भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रकृति देखना चाहिए कफोच। और अगर आपको शुक्र रेचक पेशेंट है, अगर आपको वात का दुष्टि है तो थिंक अबाउट बस्ती। कौन सा बस्ती? तो बस्ता अंड बस्ती मैं यूज करता हूँ। जो मटन काटते हैं ना, वहां पे उसके अंडे लेके आने के, बस्ता अंड, वो अंडा बकरे का, उसको बॉईल करके, और थोड़ा वियर्ड लगेगा आपको, लेकिन उसका आप बस्ती दो तो शुक्र वर्धक भी है और पेशेंट को वहां पे न्यूट्रिशन भी करता है, ठीक है। कल को आप कॉन्सेप्ट यूज करो, बट थिंक अबाउट लॉजिक, यहाँ थिंक अबाउट दैट कंसेप्ट। Thank you, Dr. Sachin. I think Dr. Manjunath Nayak is very happy with your explanation because he is a regular viewer. He constantly asks many questions. I think it is very difficult to please sir. The first time I think sir has put the thumb sign over there. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Okay. No more questions. I think there is a question in the chat box. One second. Okay. And without wasting much of the time, now I call upon Mr. Arun Kumar, final year BMS student, Ayurveda Mahavidyalaya Hubli, to give vote of thanks to Dr. Sachin Rohani sir. Arun, you are there? Yes, ma'am. Yes. Good afternoon, all. It's my pleasure to deliver vote of thanks to all wonderful souls who made today's meeting so successful. Now, I would like to thank our chief guest, Dr. Sachin Rohani sir, for sharing his knowledge with us. Thank you, sir. It means a lot. I would like to thank our principal, Dr. Prashant sir, and chairman, Dr. Naragal sir, and Dr. Jayarjishi sir, for their support in making this session successful. Thank you, sir. I also thank organizing team and all the staff members of Department of Kaya Chikitsa. Last but not least, I thank all the participants, students for their presence and valuable time for us in making today's session so successful. Thank you one and all. Thank you all. Thank you, Arun. Thank you, Dr. Sachin. You have Thank spared you, your Manjula madam. Thank you for inviting me. Yeah, Okay. sure. Yeah. Okay. I think in future also we'll have your support whenever is asked for. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank We'll you. left. Yes. Okay. There's an announcement for tomorrow's session. Tomorrow we'll be having two sessions. That is first day 17. Dr. Srinivas Reddy will be going to talk on Vardhakya Janya Vikaras. And the second one, which was interrupted because of some technical issues, that is thyroid gland and its disorders. We'll be continuing that. I think it will be covered in hardly 1 hour 15 minutes. Okay, kindly please stay with us. Thank you one and all.